आज टाइम लगे नहीं तो अभी चालू हुआ है। पूरा 8 महीना वेस्ट किया है। Hello students, good morning all. Good morning, sir. Shivansh? Good morning. Yes, sir. Shivansh, can you spotlight this video? Actually, it's not coming in my phone. Sir, the video is not on, I think. Ek minute, huh? Now? Yeah, 1 second, sir. Okay. Yeah, I think it's done, sir. Yeah, thank you, Shivansh. Shivansh, so you were able to do the homework? Yeah, sir. Okay, what was the homework? So from exercise 1, The last some I didn't get it. The last one. So 7 sum. Okay. The other student, who was the other student I had made co-host last class, a student name, some student from Dadar. Sir Swayam. Swayam. Sir Pooja. Yeah. Yeah. Pooja, can you display your name up? I am not seeing the name here. The participant list. So I raised my hand. Okay, yeah.
Sir, you disabled the chat. I disabled the chat. Just a minute. Swayam, your full name, Swayam? Swayam Sanjay Vishwakarma. Okay, all right. Yes, sir. Yeah. Okay, students. So, what was the homework from the last class? Please tell. Exercise 1, question 5 to 9. Exercise 1, question 5 to 9. Okay, okay. Now, please tell your doubt. Did you get the fifth one? Yes, sir. Fifth one you got. Okay. Sixth. How about sixth? Yes, sir. Sixth also you got. Okay, good. So Seventh. 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9 doubts, sir. Yeah, please tell what you're saying. 7th, 8th, 9th doubt. Okay. So please disable the chat. Okay. So your video is off. Yeah, just a minute. Okay. I don't know. Okay, seventh. Let's do the seventh one. So it is given that two plane mirrors of length L are separated by distance L. Man M2 is walking at a distance L. Okay. So this ये तो एक सोर्स दिख रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट O, ठीक है, और ठीक है, इसमें यहाँ पर you have a mirror. Okay, you have a mirror here. You have a mirror, और ये mirror जो है is of how much length? So this distance is L, and this mirror is of length L only. Okay, ये mirror is of length L. ठीक है. So ठीक है, हाँ guys, इस object का image कहाँ बनेगा? Right hand side. Good. So जो है इसका exactly L distance है. This is the L distance. यहाँ पे it will be there will be a image. ठीक है. Now जो है तो अब reflected सर rays. ये पूरा एक मिरर है 2L करके, ये बीच में टूटा हुआ ऐसा क्यों है? So there is a break. पूरा नहीं है, कितना ही तो, कितना part mirror है? हाँ ओके. This is length L. This is length L. हाँ. ठीक है, तो reflected rays they will appear to be coming from यहाँ से, ये मिरर से ऐसे आते लगेंगी. ठीक है, ये वाला. Reflected rays will appear to be coming from this mirror ना, ये image हो गया. ठीक है, यहाँ से आते हुए लगेंगी. वैसे इसके लिए भी जो है इस साइड एंड ये ऐसा rays है. And where is the person walking? M1 is walking on this line, ये वाला line. ठीक है. So जो है M1 को जो है कौन सी रेस दिखाई देंगी? So when M1 को इस रीजन में दिखाई देगा ना, right? ये ऑब्जेक्ट, this is image. ठीक है, everybody understood? ये ऐसा आ रहा है, इधर, ये वाला ऐसा. Sir, can you explain that M1 वाला part? Okay. Sir, are you taking homework doubts? हाँ, homework के doubts. Yes. This is the I guess this is the 7th one. Exercise 1 का 7. ठीक है. Okay, देखो. So this is the object, हाँ. And this is a mirror. ये mirror है. कितना part broken है. Still, we know how to trace an image. कैसा? How will you trace an image? ये वाला L distance है, तो L distance behind, right?
यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. Sir, how you got that image? Image याद है? Say we have a plane mirror. If this is the object, और इसके लिए you will extend this line normal. If L distance यहाँ पर है तो image क्या हो जाएगा? L distance पीछे. हाँ सर वो याद है बट M1 को M2 को नहीं देखना है, M2 को M1 की इमेज को देखना है। Yes, sir. इसमें दिया हुआ है नहीं, हाँ at दिया है okay then man M2 will be able to see image of M1 for image of M1 okay इसका image Yes sir. ठीक है फिर से कर लेते हैं so M1 is walking on this line right ठीक है M1 is walking on this line अब उसके बाद जो है क्या given है M1 is walking on this line this is the ये distance L ये object और ये mirror हो गया ठीक है ये mirror on this line broken mirror ठीक है इसका image कहाँ बनेगा पीछे बनेगा this distance is how much नहीं this is 12 12 आएगा ना सर? ठीक है तो इमेज भी कहाँ बनेगा 12 पीछे बनेगा इस लाइन का यस सर। चलो ठीक है इस लाइन का इमेज 12 यहाँ बनेगा Sir, we are doing this because we want image from M2. करेक्ट हाँ आई रेड इट रॉन्ग तो इसमें जो है वी वांटेड टू सी जो है कौन सा जो है क्या दिया है at then man M2 at O will be able to see image of M1 M1 इस लाइन पे है ना हाँ सर। तो M2 at O यहाँ पर जो M2 है हाँ सर। इसका इमेज ये दिस इज ऑब्जेक्ट ये इसका इमेज होगा हाँ सर। ओके तो फिर क्या आएगा इसका जो है दिस लेंथ इज है चलो ठीक है बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसमें ये वाला जो है 3 पॉइंट्स पे रेव्स बनानी पड़ेगी ना? करेक्ट हाँ ये हो गया ना ठीक है तो अगर ये इमेज M2 को देखना है तो मतलब रेस कहाँ आनी चाहिए इस पे आनी चाहिए सो दिस इज द लेंथ दिस लेंथ वी वांट टू फाइंड सिमिलरली इस साइड भी होगा हाउ विल यू फाइंड दिस लाइन दोनों लेंथ निकालना है दोनों सिमिलर होंगे नाउ गाइस टेल कि ये लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे The similarity. सिमिलर ट्रायंगल से ओके सो सिमिलर ट्रायंगल में जो है दिस इज पॉइंट O ये वाला ऐसा था और ये वाला जो है ये वाला दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड ये वाला वी वांट टू फाइंड सर हाँ सर वैसे हम लोग जो प्रीवियस डायग्राम बना रहे थे वो जो थोड़ा इनकरेक्ट था सर वैसे भी हम लोग मतलब रेज का डायरेक्शन नहीं वो डायग्राम नहीं वो जो है ना उसमें क्वेश्चन ही रॉन्ग रीड किया है क्वेश्चन ये है कि क्या दिया है M2 at O will see image of M1 तो पहले M1 का इमेज बनाएंगे ओके फर्स्ट सी इसका इमेज यहाँ बनेगा फिर अब उसके बाद जो है इफ दिस इज L ये वाला निकालना है से दिस इज सम y ठीक है ये लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक L दिस लेंथ इज L और यहाँ से ये वाला लेंथ कितना है 3L सिमिलर ट्रायंगल से गाइस यू नो सिमिलर ट्रायंगल से ये वाला y अपॉन दिस डायमेंशन इज इक्वल टू ये वाला लेंथ L अपॉन ये डायमेंशन तो इससे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3L। सर वो समझ में है आपने क्या किया हाँ देखो क्वेश्चन हैव यू रेड द क्वेश्चन यस सर क्वेश्चन सेज क्या दिया है इमेज ऑफ M1 बनाना है ना तो दिस इज M1 तो इसका इमेज ये जो इस मिरर पे कहाँ बनेगा पीछे बनेगा हाँ सर ठीक है भाई यहाँ तक आ गया यहाँ तक सबको डाउट किसी को डाउट तो नहीं है कि इसका इमेज यहाँ बनेगा सर मतलब कि M2 बीच में खड़ा है और M1 वहाँ पे वो पॉइंट पे खड़ा है तो M2 को M1 का मतलब जो इमेज है वहाँ पर दिख रहा है अभी फॉरगेट M2 सिर्फ M1 को देखो पहले M1 का इमेज बना रहे हैं हाँ सर ओके M1 is traveling on this line यस सर यस सर यस
इस लाइन का इमेज इस मिरर में यहाँ बनेगा. एनीबडी हैज इसका एनीबडी हैज डाउट प्लीज आस्क. चलो ठीक है, ये सबको आया. हाँ, सी M1 इज ट्रेवलिंग ऑन दिस लाइन, तो इस लाइन का यहाँ पे इमेज बनेगा. एग्री. ठीक है, अब इसके बाद अब जो है इमेज बन गया. अब who must see M2 must watch. तो M2 की आईज में रेस आनी चाहिए, रिफ्लेक्टेड रेस. तो ठीक है, ये और कैसे आएंगी रिफ्लेक्टेड रेस? मिरर से होके आएंगी. So that means we want to find the length of these two regions. Correct? इसमें किसी को डाउट? सर why we are finding but that उन लोगों ने टोटल टाइम पूछा है सर. नहीं, एक मिनट, पहले तो लेंथ कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ. पहले ये समझ में आया ना? हाँ सर समझ. Yes, sir. अब this length is 3L. This length is also 3L. So total length is how much? 6L. Total length 6L. So time. 6L by U. Time is equal to distance by speed. 6L by U. Understood? सर मतलब हमने वो मिरर का लेंथ निकाल लिया वो दोनों साइड पे. नहीं, मिरर ये है, ये इमेज का लेंथ इतना पार्ट. अच्छा ओके सर, समझा. M1 is traveling on this line. ठीक है. यस सर. इस लाइन का ये इमेज. अब हाँ सर. इस लाइन के जब है ना, इस लाइन के इतने रीजन में जब होगा M1 जो ये वाला जो है इसका इमेज, तब ये M2 को दिखाई देगा. यस फिर इमेज जब इधर होगा इस रीजन में तो M2 को दिखाई देगा. ओके सो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? 6L. अच्छा हाँ हाँ थैंक यू सर. तो जो फर्स्ट लाइन लिखा है ना सर, टू प्लेन मिरर्स ऑफ लेंथ L आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L, सर वो कहाँ पे यूज किया हमने? वो डेटा यूज नहीं किया क्या? टू प्लेन मिरर्स ऑफ क्या दिया है? लेंथ L ऐसा ये वाला लेंथ. अच्छा यूज किया ना इसका. हाँ मतलब इसका यूज ही नहीं आ रहा ना यार. ये वाला ये आ रहा है ना L, ये वाला लेंथ L, ये तो आ रहा है ना यूज. अच्छा ओ ठीक है ना. यस सर. चलो ठीक है सर. इसका एनीबॉडी हैज डाउट? सर हाँ सर आपने जो ये मार्क किया ना ऊपर और नीचे का जो पार्ट जिधर आपने टिक्स लगाए सर, उसे हम M2 का फील्ड ऑफ व्यू बोल सकते हैं M1 को देखने के लिए. मतलब इस रीजन में जब जो है ये फील्ड ऑफ व्यू इज अ रीजन. तो सर कांट बी से ये सर वो M1 स्टेशनरी नहीं ना. M1 तो खुद घूमते जा रहा है. अलग-अलग क्वेश्चंस पे अलग-अलग रीजन आ जाएगा, है ना. सर सिमिलैरिटी वाला वापस समझा सकते हो? करेक्ट. हाँ देखो सिमिलैरिटी वाला देखो हमने क्या पकड़ा? ये वाला ट्रायंगल, हाँ ये वाला और ये बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर लिया. देखो छोटे ट्रायंगल में ये वाला डायमेंशन L अपॉन ये वाला लेंथ. हाँ ये वाला लेंथ. ट्रायंगल्स साइड्स का रेशियो ले रहे हैं भाई, तो ये वाला लेंथ अपॉन ये लेंथ L by L. फिर बड़े ट्रायंगल में दिस लेंथ वी कॉल दिस लेंथ एज y अपॉन ये वाला लेंथ, एंड ये वाला लेंथ इज 3L. अंडरस्टूड? यस सर. आया ना? ठीक है. प्लीज कॉपी दिस वन एंड प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस student. हाँ पूजा. यस सर. ठीक है गाइस, ये हो गया 7th. हाँ नेक्स्ट 8th करें फिर. सर मुझे ना सर वो 6 सम जो है ना सर वो हमने क्लास में शायद से सर वो किया था सर, लेकिन वो कंफ्यूज होता है कि मतलब उसको ऐसे इंसिडेंट कैसे कर रहा है, मतलब ऐसे पता कैसे चलता है कि कैसे. 6 वाला मैंने दोनों तरीके से कराया था ना. कोई सा भी मिरर 1 में कराया था, मिरर 2 में भी करवाया था. दोनों के आंसर कराए थे. हाँ सर वो करवाया था सर, वो पता है सर, लेकिन वो इंसिडेंट सर वो कैसे करते हो कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा सा. मतलब आप ऐसे कैसे एंगल से लेते हो वैसे? नहीं देखो उसमें क्या दिया है. ये वाला हो गया ना, कैन आई रेस ना. सर मेरे को डाउट है. 1 मिनट सर मेरे को इसमें डाउट है, पूछूं मैं? हाँ सर आपने कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया है यहाँ पे? नहीं ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला. अच्छा सर तो एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो?
नहीं यहाँ तक तो आया समझ में ना। मतलब यहाँ से वापस एग्जैक्ट। हाँ देखो यहाँ से अब यार छोटे बड़े ट्रायंगल में क्या होगा, दिस इज वाई। हाँ यस। ये पूरा लेंथ 3l। हाँ हाँ। फिर छोटे ट्रायंगल में दिस इज l एंड दिस इज l। ओके ओके ठीक है सर। फिर ये 3l आ गया, ये भी 3l हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 6l, 6l by u। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है अभी ये सबको समझ में आया। 7 वाला कैन आई रेज दिस वन? सर वो ओ का इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, एक बार वापस बता सकते हो मार्क करके? नहीं ओ का इमेज बनाना ही नहीं है, m1 का इमेज बनाना है। दैट वाज द मिस्टेक आई मेड। हाँ सर मैं भी कब से M2 सोच रहा हूँ। मैंने उसीलिए जल्दी से पढ़ के बना दिया था, लेकिन हाँ स्टूडेंट पॉइंटेड आउट ना कि उसका नहीं m1 का इमेज बनाना है। यस 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 यस। सर हाँ मैं कहना चाह रहा था सर, वो हम लोग ने जो शुरू में लिया था मुझे नहीं लगता उससे कोई फर्क पड़ेगा सर, बस रे का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। ओके नहीं नहीं ठीक है, उससे तो मतलब वो वाला वो क्योंकि हमें ओ का इमेज बनाना ही नहीं है ना। हाँ सर लेकिन मतलब मैं कह रहा था कि ऐसे मतलब इसमें हम लोग ने देखा कि M1 से रेज आएंगे और मिरर से रिफ्लेक्ट होके M2 के पास जाएंगे। हाँ नहीं वो रे डायग्राम बनाना बहुत ही इसलिए मैंने क्या किया था लास्ट 2 क्लासेस में, डायरेक्टली भाई प्लेन मिरर का है, इमेज सीधा पहले बना लो, रे ट्रेसिंग मत करो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सर तो मतलब वैसे ही अगर हम लोग M2 से बना लेंगे तो फिर नहीं M2 से नहीं बनाना है, हमेशा इसका इमेज बनाओ और ट्रायंगल से करो, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेट होगा। एग्जाम में सिर्फ यू गेट ओनली 2 मिनट्स, उस 2 मिनट्स में यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड सॉल्व एंड मार्क, है ना। तो रे डायग्राम हमने पॉइंट का एक पॉइंट सोर्स का हमने बना कर लिया था, फिर हमें पता है कि पॉइंट सोर्स का इमेज ऐसा बनता है, वी विल यूज दैट, अदरवाइज स्लो हो जाएगा काफी एग्जाम में, तो फिर एक ही क्वेश्चन में रह जाओगे। ठीक है ना सर। सर वो 6th वाला एक बार ऐसा वो मैंने बोला ना वो इंसिडेंट कैसे। ओके सर ये वाला सबका क्लियर हो गया ना 7th? Yes, sir. So in the question they've said the two mirrors are separated by a distance L. What do they mean by that? They're saying from M2, right? हाँ Or ये वाला हाँ okay ठीक है। So I will erase this one। अभी तो किसी का तो नहीं है ना? नहीं सर erase कर दो। ठीक है 6 वाला किया था, लेकिन ठीक है फिर से कर लेते हैं। 6 वाले में देखो यहाँ पे यू आर गिवन 2 मिरर्स, है ना, ये हमने जो किया था, और उनके बीच का जो है जो है एंगल दिया है 70 डिग्री, ये भी दिया हुआ था। फिर रे जो है एक मिरर पे आ रहा है, ये यहाँ पे आया, दिस एंगल इज से थीटा, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा। फिर उसके बाद रे इधर जा रहा है, तो यहाँ पे फिर रिफ्लेक्शन हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल, ऐसा दिया हुआ है। आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब दिस इज द फर्स्ट मिरर, दिस इज द सेकंड मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन। ये समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया ना? हां सर। यस सर। अब देखो ये 70 है, ये भी 70 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये 20 हो जाएगा आई ना, ये भी 20 हो जाएगा, आई इक्वल टू आर से। अब ये वाला वापस 70 हो गया, 70 70 140, 140 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 50, ये वाला 50 है तो ये 40 हो जाएगा, 40 है तो ये भी 40 आ जाएगा ना सर। वो 40 होना चाहिए ना सर? हाँ सर वो 40 होएगा, ट्रायंगल का वो थर्ड एंगल सर वो 50 होगा सर। हाँ उल्टा है सर। हाँ चलो ठीक है, ये वाला 50 और ये वाला 50, ठीक है ना। अभी किसका 5th वाला? 5th में भी डाउट है क्या? 5th वाला तो कराया था ना इस टाइप का, चलो ठीक है 5th भी कर लेते हैं। हाँ सर फीट नहीं दिखेगा ना यार, ये समझ में आया ना, ये वाला कॉपी करो कम से कम गाइस, ये वाला क्वेश्चन अगर कि थोड़ा सा मतलब लेक्चर की नोट्स की रिवाइज किया करो, ठीक है। एक मिनट जाओ, ठीक है, ये लो जल्दी कॉपी करो, खोलो ना। ठीक है। 5th वाला एक जल्दी कर लेता हूँ। 5th वाले में क्या पर्सन का कितना, हाइट ऑफ द पर्सन कितना गिवन है? इसलिए हाइट ऑफ द पर्सन इज हाउ मच? सर 5th वाले में लगेगा नहीं।
1.5 meters. Distance between person head and eyes वो कितना दिया हुआ है? हेड और आई के बीच का डिस्टेंस 0.1 मीटर 0.1 मीटर नहीं दिया हुआ है इतना आई लेवल इज 1.4 meters above the ground. ठीक है, तो इसका आई लेवल जो है 1.4 meters ना ऐसा दिया हुआ है. Person of height with his eye level 1.4 meters stands before a plane mirror of length कितना दिया है 0.75. So height of the mirror is 0.75. ठीक है, अब जो है तो ये डिस्टेंस 1.4 ये कितना हो गया 0.1 मीटर. ठीक है, अब मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर कितना होता है, इसका हाफ तो आना चाहिए, तो करेक्ट है. और इट मस्ट बी प्लेस्ड एट हाइट कितना h2/2 above ground. दिस इज h2 एंड दिस इज h1. ये डिराइव किया था हमने h2/2. h2/2 क्या होगा 1.4/2 कितना हो जाएगा 0.7. बट मिरर कहाँ पे प्लेस्ड है 0.75 तो हो जाएगा बराबर. तो दैट मींस क्या हो जाएगा 0.75 थोड़ा सा ऊपर हो गया ना, जाएगा, पैर नहीं दिखेगा. तो मिरर थोड़ा अगर ऊपर हो गया तो कौन सा क्या फीट नहीं दिखेगा. फीट नहीं दिखेगा बिकॉज दिस हाइट इज 0.75 and it should be 0.7. करेक्ट, ये समझ में आया? ये अपने डिराइव किया था ना. Yes sir, L/2 हाँ, h2/2 and minimum height of the mirror is half and it should be placed at height h2/2 above the ground. किया था ना ये तो 0.2 मीटर्स का पैर दिखेगा नहीं सर उसको. हाँ, मतलब he cannot see his feet हो गया. बस आंसर आ रहा है ना इसमें, सी ऑप्शन. यस सर. ठीक है, किसका डाउट था ये वाला, समझ में आया? ठीक है, सर हाँ सर वो 0.8 होना चाहिए, 0.8 होना चाहिए. h2/2 above ground. नहीं सर वो नहीं, वो 0.75 लिखा है ना, 0.8 होना. वो 0.8 होना चाहिए. क्वेश्चन में 0.8 दिया हुआ है. हाइट ऑफ द लोअर एज ऑफ द मिरर अबव द फ्लोर इज 0.8. ये वाला 0.8 है क्या? हाँ. Height और above सर the वो floor. फिर हेड के बारे में क्या बोलेंगे? हेड के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, उसका हेड दिखेगा हेड नहीं दिखेगा ना, हेड तो दिखेगा ना. अपन ने बताया था ना, अगर कि मिरर एग्जैक्ट पोजीशन पे दोनों दिखते हैं, थोड़ा ऊपर ले जाओगे तो हेड दिखेगा, फीट नहीं दिखेगा. अरे हाँ, यस सर, बताया तो था. अब कौन सा है नेक्स्ट होमवर्क में, कौन सा था 8 वाला? 8 वाला. ठीक है, कैन आई इरेज दिस वन? यस सर. सर 1 मिनट, सर 1 मिनट. ओके ओके सर हम स्क्रीनशॉट डाल दे ग्रुप पे. मेन अपना मेन जो है उसमें क्वेश्चंस जो आते हैं इसमें से नहीं आते गाइस. मेन जो है ये सब तो 9 10 का पार्ट है. मेन क्वेश्चंस हमारे आते हैं स्फेरिकल मिरर से, जो हमने स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक. स्फेरिकल मिरर्स वहां से, इवन एचसीवी भी देखोगे, बाकी सब बुक्स में भी स्फेरिकल मिरर्स पहले वहीं से स्टार्ट होता है. ये तो 9 10 का स्टार्टिंग बेसिक था. चलो ठीक है फिर. सर हेड के बारे में क्या नहीं बोल सकते? अरे ये तो बताया था कि अगर मान लो एग्जैक्ट पोजीशन पे दोनों दिखते हैं, थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, फीट नहीं दिखेगा और हेड दिखेगा ना, है ना? यस सर. सर अगर मिरर थोड़ा नीचे होता तो हेड नहीं दिखता ना. नहीं, एग्जैक्ट पोजीशन से जो एग्जैक्ट h2/2 अबव द ग्राउंड होना चाहिए, उस पोजीशन पे दोनों दिखते हैं. सर h2/2 में कंप्लीट दिखता है ना? h2/2 अबव ग्राउंड में पूरा दिखता है. अब सर आप एक बार वो कंक्लूजन एक्सप्लेन कर सकते हो सर, वो हमको क्या मिला मतलब इधर से? हाँ, क्या सर मतलब कि सर h2/2 सर 0.7 आया सर, फिर हमने वो कंक्लूड कैसे किया सर? नहीं देखो, h2/2 मतलब 0.7 आ रहा है. हाँ सर, हाँ. मतलब मिरर का लोअर एज कितना होना चाहिए, ग्राउंड से कितना ऊपर होना चाहिए सर? अरे यही तो है 0.7. हाँ सर. अभी कितना है? 0.8 है. मतलब आपने मिरर को ऊपर ले गए. हाँ सर, करेक्ट. तो फीट नहीं दिखेगा ना. ओके सर. सर पढ़ नहीं रहे हो हैं? नोट्स पढ़ना चाहिए ना, क्लास नोट्स, स्क्रीनशॉट्स तो आ रहे हैं ग्रुप में, क्यों नहीं पढ़ रहे वाला? हाँ सर आई वांटेड टू आस्क वन डाउट लास्ट क्लास से भी. सर ये जो मिरर का जो हाइट है उसमें कुछ
डिस्टेंस का रिस्ट्रिक्शन है क्या कि कितने मिनिमम डिस्टेंस से अपन मान दिखता रहे है? हैं ना पर्सन के आईज इधर कितना भी मूव कर सकता है। अच्छा ओके, तो मतलब एकदम बगल में भी खड़े हो जाएंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ ठीक है, अभी कौन सा यार 5th 6 7 हो गया। हाँ और कौन सा था? 8 चलो 8 का किसका आया आंसर? सर फोर्थ। फोर तो दिया ही नहीं था ना। सर 4 डिस्कस हो गया था, लास्ट क्लास में ही डिस्कस हो हाँ गया था। सर 8 करो सर, वो लोग पका रहे हैं। वही ना फोर्थ फोर्थ सर डिस्कस भी नहीं हुआ, फोर्थ करना ही नहीं है सर। फोर्थ होमवर्क नहीं था, रुको नहीं था। 8 वाला। तो 8 में क्या क्या 8 किसी का आया आंसर? क्या क्या दिया हुआ है? इसका आया 8। अरे 8 का तो वही ना ओनली सी होगा। सर मेरा है। I got both A and C. ओके 8 who got the correct answer? किसका? सर फील्ड ऑफ सर मुझे ओके कैन यू एक्सप्लेन? ड्रॉ करके आ गया आंसर। आंसर द बीओ। सर रुक जाओ ठीक है। हाँ सर उस पे रेज पहुंचेंगे ही नहीं, ओनली सी। एक मिनट रुक जाओ, चलो ठीक है। पहले ये बताओ कि जो है दिस आर द टू मिरर्स। पहला वाला मिरर दिया हुआ है और दूसरा a source of light S is placed in front of two large mirrors as shown. सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे है, ठीक है। अब बताओ इसका इमेज इस मिरर में कहाँ बनेगा? The image of S in this mirror. हाँ सर एकदम नीचे, उतना ही डिस्टेंस नीचे, नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल हो जाएगा। हाँ सर करेक्ट। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, दिस इज इमेज, इफ दिस इज मिरर 1 दिस इज इमेज इन मिरर 1। अब देखो इसके रेस कैसे जाएंगी, कहाँ कहाँ होंगी? ये वाली रेस इधर होगी, मिरर 1 के पासिंग, और इस साइड इधर होगी पूरी रेस। ये सब रेस जो है, ये सब रेस कौन से मिरर से आ रही है? 1। सो जो है which of the following observers will see only one image, ठीक है। अब जो है दूसरे मिरर में देखते हैं इसका इमेज कहाँ बनेगा? परपेंडिकुलर सर उतना ही डिस्टेंस सर नीचे बनेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ये वाला हो गया। अब ये वाला जो है I2 इमेजेस में आ गया, ठीक है। अब इसकी पासिंग थ्रू M2, रिफ्लेक्टेड रेस है ना, तो रिफ्लेक्टेड रेस M2 से पास होनी चाहिए। ये ऐसा हो गया यहाँ से, और किधर जाएंगी? इधर जाएंगी ना ऐसे, यहाँ पर। यस सर। ठीक है, तो ये ऐसा, ये पूरी रहेंगी। तो ठीक है, अब बताओ कि जो है which of the following observers will see only one image of S? पहले ए को देखते हैं। ए यहाँ पे पड़ा हुआ है यार। ए के पास किसकी किसकी रेस आ रही है? दोनों की आ रही है कि एक ही की आ रही है? दोनों की। Where is B? B यहाँ पे है। Okay, B यहाँ पे। B के पास दोनों। How about C कहाँ गया यार? C पर है। C ऊपर है। ऊपर बाजू में। हाँ एक ही सी वही पे है। सिर्फ I2 एक ही आ रही है। सर I2 की आ रही है सर। आएगा। तो आंसर देखो यार, फिर कौन सा होगा? ओनली सी। आंसर चेक करो जल्दी। सर सी है। एक ही आ रहा है आंसर, तो आंसर एक ही आ रहा है। एक्सरसाइज 1 तो वो 30 डिग्री के दिया था, फिर उसका यूज ही नहीं हो रहा। वही तो सर हम उधर से क्यों रेस को I1 में से वो साइड पे क्यों नहीं कर रहे सर डिविएट? अरे मिरर रिफ्लेक्टेड रेस तो ऐसे ही जाएंगी ना यार, जहां तक मिरर होगा उसी में से जाएंगी। रिफ्लेक्टेड रेस लाइक ना। हाँ ओके सर समझा। और सर वो और एक चीज सर, वो जो सेकंड इमेज वो I2 है सर। हाँ। उसमें जो आपने मतलब सेकंड पॉइंट है ना S सर, सर वहां से आपको वैसे पता चला वो नॉर्मल पे ऐसा ये करना है, मतलब इंसिडेंट। मिरर से हमेशा मिरर से हमेशा इमेज बनाना है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट का। ड्रॉ हाँ, नॉर्मल हमेशा। नहीं सर, वैसे नहीं सर।
सर वो I2 जो है ना सर, हाँ सर उसके जो हमने S बनाया ना सर, S से जो I2 पे हम ये रे डाल रहे सर। हाँ सर। ये इमेज, इसका इमेज यहाँ बनेगा ना नॉर्मल लाइन पे, यहाँ पर फिर यहाँ से रेस निकलेंगी सब रेस। अच्छा वो सब हाँ, मेरे को लगा डिस्टेंस वो सोर्स इमेज ही से उस पे मिरर बन रहा उतना है ही सर। मिरर से इमेज। करेक्ट। अच्छा हाँ ओके, थैंक यू सर। ठीक है सर मुझे लगा कि वो इमेज नॉर्मल पे प्लेस्ड है सर। नहीं ठीक है। हाँ अब जो है 8 का आंसर क्या आ रहा है? बी आ रहा है। अब 9 किसका आया? हाँ सर मुझे सर 9th सर 9th होमवर्क ही नहीं था। सर 9th कॉनकेव मिरर का है। था होमवर्क वो। था, ऐसे लिखा था अपने, लेकिन कॉनकेव मिरर वाला है। ओके तो ये वाला, ओके तो पर ये वाला आई मैं डोंट थिंक उसमें कॉनकेव मिरर का कोई कॉन्सेप्ट यूज होता है, लाइक वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन पे ही है ना। चलो ठीक है देख लेते हैं भाई, एक मिनट जाओ। सो प्लीज वेट। सॉरी किसी ने स्क्रीनशॉट लिया था क्या? हाँ सर मैंने लिया था। मुझे यहाँ टेकन स्क्रीनशॉट लूँ ना? सर नो सर। सर मैंने भी लिया था, मैं भेज देता हूँ। ग्रुप में डाल देना प्लीज। हाँ सर एक डाउट है, हाँ। पूछूं? हाँ सर ये जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी ना, क्योंकि हम लोग को रेज ऑफ रिफ्लेक्शन ये जॉइन करना पड़ रहा है इसलिए। किसमें यहाँ पर? Yes. हाँ यहाँ पर। यस ये वर्चुअल इमेज बनेगी कि रियल इमेज बनेगी? नहीं, जो इमेज थी वर्चुअल थी ना यार। वर्चुअल बनेगी ना? यस वर्चुअल इमेजेस ना, रियल ऑब्जेक्ट का। हाँ करेक्ट। ओके सर। चलो भाई 9th का बताओ किसका आया? मेरा 9th हाँ सर मुझे आया, पर मैंने ऑनलाइन सर्च किया था। नहीं एक हाँ ठीक है, एक मिनट देखो। This are what is given the circular boundary of a concave mirror substance a cone of half angle theta। भाई ये वाला है, ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है। ओके स्फीयर में वी नो, स्फीयर में या कॉनकेव मिरर में नॉर्मल है ना, नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल विल पास थ्रू सेंटर। चलो ठीक है, क्या दिया है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला थीटा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सफर्स रिफ्लेक्शन मोर देन 1। ओके मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा मोर देन 1 मतलब जस्ट इसको क्या होना चाहिए? ऑलमोस्ट ऐसा टचिंग ना। चलो ठीक है यार, फिर कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व कैसे करोगे? Sir, can we say कि reflection has to be at least 90 degree? Sir, focus should be inside of aperture. नहीं एक मिनट देखो, ये वाला जो है दिस विल एक्ट एज अ नॉर्मल। एग्रीड? यस इफ दिस इज अ नॉर्मल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, ऑलरेडी एंगल। हाँ सर। एंड दिस आल्सो बिकम्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। हाँ सर। अब ये थीटा है गाइस। अब जो है ये ट्रायंगल में दिस ये रेडियस है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स दे आर आल्सो इक्वल। सर वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज किया आपने, एंगल्स अपोजिट वाला। ये वाला हाँ, मतलब मैं कह रहा था कि सेकंड रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ओके सेकंड रिफ्लेक्शन थीटा 45 आ रहा है क्या? थीटा 45 आ रहा है क्या? हाँ आंसर फिर क्या किया? तो 90 डिग्रीज है सर और 2 थीटा है सर, तो 2 थीटा है सर 90 आएगा। 2 थीटा विल ये 4 थीटा हो गया 180। अच्छा ओके सर। तो थीटा फिर 45 है। एक चेक करो आंसर। तो वो नीचे वाला थीटा कैसे आया? वो ये वाला देखो, ये वाला जो है रेडियस, दिस इज आल्सो रेडियस। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो। आई गॉट इट। तो ऊपर वाला थीटा कैसे आया? ये वाला देखो, हाँ ये दिया हुआ है कि दिस रे इज पैरेलल दिया हुआ है। इफ दिस इज पैरेलल, ये और ये एंगल थीटा है, Alternate angles.
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा. Yes, sir. So this is theta and this is theta. अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है. If this is I, so I equal to R as per the law of reflection. Thank you, sir. सर Yes, हाँ. सर प्लीज आप वो नीचे वाला थीटा और एक बार प्लीज बता सकते हो. ये वाला, हाँ देखो देखो ये वाला सेंटर है ना. हाँ ये सर. सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया ना यार. ये रेडियस, ये भी रेडियस. यस सर. And angles opposite to equal sides are also equal ना. ओके सर समझ गया एंगल. हाँ सर ओके. यहाँ तक अब आगे स्टार्ट करें. Yes, sir. Sir, is this true for all concave हाँ. mirrors? क्या? Is this true for all concave? हाँ, कॉन्केव मिरर हम जो अभी करेंगे, कॉन्केव विल स्टार्ट. एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा देर ये वाला कंप्लीट कर लेने दो. ये काफी थोड़ा मेरे को टाइम ज्यादा लग गया. I didn't quite understand the question actually. Which one? In ninth one itself, like what exactly are they asking us in that question? उसमें जो है एंगल ऑफ थीटा. नहीं, हाँ एंगल थीटा सच दैट रिफ्लेक्शन क्या दिया है क्वेश्चन में. इट शुड बी रिफ्लेक्शन शुड बी एक से ज्यादा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होना चाहिए. So how are multiple reflections taking place in this case? ओके. एक नीचे और एक ऊपर. मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कैसे हो रहा है. देखो यहाँ पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ जस्ट एज पे सेकंड वाला हो गया. Oh, because it's minimum we've taken the edges. सर हाँ. okay, सर ऐसा रिफ्लेक्शन हो सकता है क्या. सी से लेके नॉर्मल तक जाएंगे. सर एक बार आप पॉइंट्स मार्क कर सकते हो. एबीसीडी तो इजी जाएगा मेरे को बोलने के लिए. ओके. हाँ सर ऐसा हो सकता है. सी से पी जाएगा, फिर पी से वो कॉनकेव मिरर के मिड पॉइंट पे जाएगा, फिर वो मिड पॉइंट से क्यू पे जाएगा और वापस क्यू से सी. हाँ एक मिनट. नहीं वो मेरे को थोड़ा कॉन्केव मिरर बताने दो. दैट क्वेश्चन आई विल टेक. हाँ प्लीज रिमाइंड मी. व्हाट्स योर नेम. वेदांत. सर वो बोल रहा है सर वो यू रिमाइंड मी दिस अगर क्वेश्चन. लगेगा तो क्या होगा. नहीं आई अंडरस्टूड हिज क्वेश्चन. आई विल गिव दिस क्वेश्चन just after completing plane mirror, and when I'm about to start concave mirror, I will take this question. Huh? You remind me. Okay, Your sir. name is Vedant, na? Vedant. Yes, sir. A407. Please remind me as soon as I start concave mirror. वेदांत. Yes, sir. चलो guys, अभी ये तो हो गया ना. हाँ. सर मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए जो मतलब रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर ही रहना चाहिए इंसिडेंट रे के. मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए नहीं, यहाँ पे तो दिया है ना सेकंड रिफ्लेक्शन होना चाहिए ऐसा, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया. सर इधर लाइट रे कैसे का पाथ कैसे रहेगा. किसका लाइट रे का पाथ कैसा रहेगा, मतलब ट्रैवलिंग पाथ कैसा रहेगा, मतलब कहाँ से कहाँ जाएगा. ये ऐसा आया फिर यहाँ पे थीटा तो आपको निकल जाएगा. ओके सर. सर यहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल 90 डिग्रीज है, तो फिर हमेशा जब हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन लेंगे तब ऐसा ही रहेगा. नहीं, वी शुड नॉट जनरलाइज. ऐसे तो अपन कितने केसेस को याद थोड़ी ना रखेंगे. हम डायरेक्टली जस्ट सिंपल बेसिक गो बाय द लॉ. क्या है I इक्वल टू R, फिर ज्योमेट्री लगा के ट्रेस करते रहो प्लेन मिरर्स के लिए. ऐसे भी इसके क्वेश्चंस पूछते नहीं है. जेई में मेन जो है, जेई में देखो इवन एनसीईआरटी या देखोगे तो जो वो लोग जो है स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट होता है. ये तो हमने 9-10 का थोड़ा रिवाइज करने के लिए किया, तो ज्यादा टाइम लग गया. सर हाँ. सर आपने वो एंगल ऑपोजिट वाला मुझे समझाया सर, लेकिन वो आर के ऑपोजिट तो सर वो 90 है ना सर. तो आर के ऑपोजिट नहीं, ये वाला ट्रायंगल ले अरे लिया. आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना. अच्छा आइसोसेलेस. PQC है ना. PQC है ये वाला R तो थीटा ना. अच्छा आइसोसेलेस एंगल थे. ओके सर समझ गया. चलो ठीक है. अब इरेज कर लूं. Yes, sir. अब जो है हमने कहा. हाँ क्या लास्ट में कौन सा पढ़ा था. नंबर ऑफ इमेजेस वाले पढ़े थे ना. हाँ सर. हाँ सर. इट वाज जो है टू प्लेन मिरर्स केप्ट पैरेलल टू ईच अदर. फिर जो है अब गाइस ये वाला है तो नहीं कोर्स में कहीं पे भी, इवन एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स में लिखा रहता है, तो प्लीज नोट डाउन ऑल्सो. टू प्लेन मिरर्स inclined at angle theta. ये है नहीं गोस गाइस, फिर भी लेकिन लिख लो. हाँ देगा.
that means what you have two plane mirrors and theta is the angle between them. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहीं पे है, मान लो बीच में, say object is somewhere in between the plane mirrors. Say this is mirror 1, mirror 2. Number of images निकाल. So first case इसमें जो है, first you find n, where n is equal to 360 upon theta. So first step is to find, step 1, first find n. N is equal to 360 by theta. If so, case 1. If So n क्या है? n जैसे हम 360 से suppose ये angle is say 60 degrees. This angle is 60. तो इस केस में कितना हो जाएगा? 360 by 60 will be कितना? 6. So n की वैल्यू आ गई 6. Then if n is even, if n is even, then total number of images is equal to n minus 1. We are finding images, sir. Number of images. Total number of images, yes. Guys, ये है नहीं कोर्स में, लेकिन फिर भी लिख लो, कुछ बुक्स में दिया रहता है, तो ठीक है. तो ये काम आएगा क्या आगे? नहीं यूज नहीं है लेकिन फिर भी लिखो. 10th का पार्ट है ना सर ये? हाँ प्लीज नोट डाउन. लेकिन हाँ सर n बताता क्या है मतलब वैसे? हाँ सर एग्जैक्टली n है क्या सर? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म. ओके सर. n 360 by theta है. एक कांस्टेंट मतलब एक वेरिएबल है. अच्छा सर वैसे ही आपने ले लिया सर कोई वेरिएबल ऐसे? जैसे मान लो, एक मिनट जाओ देखो. जैसे अगर कि मान लो you have two mirrors, they are inclined at angle of 60 degrees. तो पहले n निकालोगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 360 by 6 आ गई. तो ये even आ गया, even है, therefore total number of images 5. This will be 5. अच्छा सर मतलब ऐसे ही आपने एक वेरिएबल ले लिया है और उस पे अपन कैलकुलेशंस कर रहे हैं. करेक्ट. ओके सर. अगर टोटल नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड समवेयर इन बिटवीन टू मिरर्स. अगर मान लो एंगल 90 है, तो व्हाट विल बी n 360 by 90? 4 इमेज सर 3 इमेजेस. टोटल इमेजेस 4 हुए ना. लेकिन आंसर क्या है? n minus 1. 4 minus 1 कर. सर हाँ तो लेकिन अगर थीटा अगर ऐसे रैंडम एंगल हो गया जैसे 48 63 डिग्री ऐसे. नहीं अपन को सिर्फ ना ऑड और इवन का ही मैं लिखवा रहा हूँ, बाकी का नहीं. तो सर अगर एक इंटीजर आंसर नहीं आया तो उस केस में क्या करने का? नहीं हाँ ये है भी ना कोर्स में. इंटीजर फंक्शन यूज करना. ये है नहीं. अच्छा ओके. तो कोई कुछ प्रूफ है क्या इसका कैसे आया? पूछते ही नहीं कभी भी. लास्ट टेक आउट लास्ट 40 इयर्स का पेपर, कभी नहीं पूछते ये वाला, लेकिन कुछ दिया रहता है कहीं ना, तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया था. सर कब आपने क्या बोला कितने जगह रहेगा ऑब्जेक्ट? तो सर एक डाउट है. हाँ ले ये वाला पहले कॉपी करो. हेलो सर. हाँ सर अगर थीटा ये अलग अलग एक ही मतलब 2 मिरर्स में ही 2 थीटा आ जाए तो दो क्या 2 सर मतलब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं जैसे कि आपने जो मिरर बनाया उसमें ओरिजिन से अगर ओ को ज्वाइन कर लेते हो और 2 थीटा हो जाएगा, तो अगर अलग अलग आ जाए तो कैसे करें? नहीं यही वाला लेना है. थीटा एंगल बिटवीन टू मिरर्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल. सर उसमें फिर कभी कौन से इमेजेस रिपीट भी हो सकते हैं, मतलब एक के अंदर एक, तो फिर हाँ लेकिन नहीं यू सी लास्ट मैं वही करना चाह रहा था. 40 इयर्स का पेपर देखना, नॉट 10 इयर्स, लास्ट 40 इयर्स का. उसमें एक भी क्वेश्चन इस टाइप का है ही नहीं, मतलब इस टाइप का इट्स नॉट इन द सिलेबस, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जो है सिंपल केसेस अपन लिख लेते हैं. तो फिर ये नंबर ऑफ इमेजेस, हाँ जैसे वो बच्चे ने बोला वो फिर वो तो करेक्ट है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होएंगे. हाँ वो लेकिन वो काउंट करना पड़ता है, तो उस पे मत ध्यान दो गाइस. उसमें मत ध्यान दो. उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि एंगल 360 क्रॉस कर दिया कर रहा है कि नहीं. नॉट लिसनिंग. हमें जो मेन कोर्स की तरफ जाना है, कोर्स हमारा स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट हो रहा है. ये जनरल ऐसे ही चल जाएगा. ठीक है सर. यूज नहीं है इसका.
Sir, if n is odd then? हाँ क्या? Sir, if n is odd then, मतलब n odd होगा तो? एक मिनट can I erase this one ना? ये है ठीक है गाइस, ये कॉपी कर लिया ना सबने? Yes sir. Yes sir. देखो अगर कहीं जो है ठीक है, फिर भी तुम्हारे एक डाउट के लिए एक बार मैंने ये बताया। हाँ, here you have these two plane mirrors M1 M2 हाँ। Suppose ये हो गया M1 और ये हो गया M, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब जो है guys will start let us start tracing huh? We'll start tracing from using M1 first huh? Start tracing from M1 first. एक मिनट गाइस, साउंड आ रहा है एक मिनट। सर इसमें वो केस भी है ना, इफ n is odd बट बाइसेक्टर पे लाई करता है पॉइंट। नहीं एक मिनट जाओ, पहले ये वाला कर लेने दे। ये वाला देखो, उस स्टूडेंट का डाउट था कि जो है जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए एक 90 डिग्रीज के लिए अपन ट्रेस करके देखते हैं। तो अगर ट्रेस ही करना है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड है काफी, फिर भी देख लेते हैं। स्टार्ट, तो यहाँ पर हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं? पहले स्टार्ट ट्रेसिंग फ्रॉम M2 फर्स्ट, ठीक है ठीक है। पहले किससे स्टार्ट करेंगे? M1 से ना। इसका इमेज M1 में कहाँ बनेगा? फिर पीछे, नीचे नीचे नीचे, ठीक है। और गाइस ये दोनों का कॉमन बैकवर्ड रीजन है। पहले यहाँ बनेगा इमेज। तो दोनों डायग्राम डिफरेंट है ना? हाँ दोनों अलग अलग है। यहाँ पर M1 से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ तो गाइस देखो, यहाँ पर हमने पहला इमेज यहाँ बना लिया। दिस इज द फर्स्ट इमेज, यू स्टार्टेड ट्रेसिंग फ्रॉम 1 फर्स्ट, ठीक है। अब किस में बनाओगे? सेकंड में ना? M2 सेकंड। ये क्या हो जाएगा? सर यहाँ पे कैसे आएगा? हाँ ये तो बैक रीजन है ना, कुछ है नहीं ना यहाँ पे। मिरर दोनों का मिरर तो कॉमन ऊपर है ना? बैकवर्ड नहीं, इससे भी बनेगा ना, इससे। तो सर वो ऐसे डायगोनली बनेगा ना वहाँ पे? ऐसा हाँ नहीं। यहाँ पर अब दोनों के कॉमन बैकवर्ड रीजन में आने के बाद फिर रुक जाना है। हाँ यहाँ सर एग्जैक्टली कर क्या रहा है? ऐसा कौन सा क्वेश्चन है मतलब ये? नहीं वो पूछ रहा था ना कैसे आया नंबर ऑफ इमेजेस, वो काउंट करवा रहे हैं एंगल 90 डिग्री के। ओके सर। अब देखो ये वाला, अब यहाँ पे स्टार्ट करो M2 से। M2 का इमेज यहाँ, इस ऑब्जेक्ट का M2 में इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, राइट? यस सर। चलो दिस इज द फर्स्ट इमेज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 फर्स्ट। अब M1 में ही बनाओ। M1 में कहाँ बनेगा? यहाँ बन जाएगा। अब फाइनल आंसर क्या होगा? दोनों को साथ रख के प्रेजेंट करना है, दोनों को साथ में, ठीक है गाइस। ये ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ बन गया? ये वाला यहाँ बना, ये ऑब्जेक्ट था, और ये वाला, राइट? ये क्या था? I11, ये 21 था। फिर पहला यहाँ पर ये वाला जो है I12, और ये वाला I22। So how do we know it will coincide that fourth point? अरे कोइंसाइड ही होगा ना यार, ये ज्योमेट्री है ना, यहाँ से x एंड y देखोगे तो हाँ यस सर, इसको x लोगे, इसको y लोगे ना, नहीं आएगा सर। तो 3 इमेज आ रहे हैं फिर। करेक्ट, 3 इमेज आए ना, ओवरलैप हो जाता है ना 2 इमेज। करेक्ट सर मतलब सर जो स्टार्टिंग पॉइंट है सर, वो ऑब्जेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमें ऐसे रेक्टेंगल शेप में जाते रहना है ना, वो मिरर की वजह से। करेक्ट, हाँ ये बनाना पड़ता है। लेकिन गाइस ये है नहीं ना, जस्ट फॉर्मूले से सिंपल वाला मैंने इसलिए लिखवा दिया था कि ऑड एंड इवन का काफी है। और इतना ट्रेस करेंगे, ये ट्रेस ये सब नहीं पूछते हैं, ये है ही नहीं सिलेबस में। इसके लिए हम लोग एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, जिससे पता चले कि हम लोग, हाँ मैं उसको ऑड वाले के लिए लिखवा देता हूँ, रुक जाओ। पहले ये वाला समझ में आया ना, एक स्टूडेंट का कोई पूछ रहा था, इसके लिए हम लोग ट्रिक यूज कर सकते हैं, उससे पता चल सकता है कि ट्रेस हो रहा है कि नहीं।
हाँ ये उससे मतलब ठीक है, ये वाला इसमें और ज्यादा नहीं, बस ये तो समझ में आया ना रे डायग्राम ये वाला। सर हाँ चलो ये वाला कॉपी करो जल्दी। सर वो जो लास्ट डायग्राम बनाया ना उसमें वो A22 कैसे फॉर्म होएगा, क्योंकि वो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है ना। अरे नहीं, यहाँ पहले इससे बनाना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इससे बनाना ये वाला। क्या है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? अरे ये है ना ऐसा। अच्छा M1 का तो टोटल इमेजेस कितने आ जाएंगे? 4 नहीं 3 ना। सर तो गाइस फॉर्मूले से याद रखना, फॉर्मूला याद रखना है आपको। हाँ सर हाँ सर हम I21 का इमेज नहीं बना सकते क्या, मतलब मिरर 1 पे उसका रिफ्लेक्शन? नहीं 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 नहीं, फिर दोनों के कॉमन बैकवर्ड रीजन में आने के बाद रुक जाना होता है। अच्छा सर ऐसा मतलब क्यों, मतलब A21 का हाँ कैसे दोनों के बनेगा, कॉमन, तो उधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है ना। दोनों का कॉमन बैकवर्ड आ गया ना। हाँ क्या सर, एक बार वापस? दोनों का कॉमन बैकवर्ड में आके फिर नहीं बनाना होता है। सर क्यों ऐसा? वो रे ट्रेसिंग करोगे तो वो काफी कॉम्प्लिकेट चीज है, रहने दो ना इसको। है नहीं, कोई एक पूछा था, मैंने इसको ये यहाँ तक बना दिया, फिर और आगे जाओगे और जाते जाओगे तो पता चला 3 लेक्चर हो गए, हमारा स्फेरिकल मिरर स्टार्ट ही नहीं हुआ है कोर्स में। अच्छा मतलब वो दूसरा टॉपिक का है मतलब। हाँ ये अपने अपनी आगे फिर इंजीनियरिंग में ना, इंजीनियरिंग में सब आएंगे। तो मतलब उसका कोई रीजन है हम नहीं बनाते? रे ट्रेसिंग से होता है, दोनों कॉमन बैकवर्ड रीजन में दिखता है तो रे फिर इंटरेक्शन बंद हो जाता है। अच्छा तो अभी अभी वाला मत करो, क्योंकि क्या है उसमें फिर ये हो जाएगा ना, काफी हमारा कोर्स से हम अलग चले जा रहे हैं। सर वैसे करें तो अगर हम लोग एंगल्स को ऐड करें तो हो सकता है। नहीं गाइस देखो, कोर्स से काफी अलग चले जा रहे हैं। एक तो ये नहीं था, फिर भी आए, फिर इसमें अपन रे ट्रेसिंग किया, और ये है ना जो स्फेरिकल मिरर वो स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तक, 3 लेक्चर हो गए हमारे, तीसरा है। ठीक है सर, चलो आगे। ये वाला हो गया ना, सबने कॉपी कर लिया? यस सर अभी। यस सर। चलो ठीक है। अब जो है हाँ उसका इवन एक बार ऑड का भी लिखवा देता हूँ। चलो ऑड के लिए तो केस 2 अगर जो है क्या था, n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा, इफ n इक्वल टू 360 बाई थीटा इज ऑड है। तो ऑड जैसे मान लो थीटा की वैल्यू 72 ले लिया, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ये ऐसा हो गया, वैसा वाला केस। उस केस में 2 सिचुएशंस आ जाते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर, ऑब्जेक्ट लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर, और दूसरा ऑब्जेक्ट डज नॉट लाई ऑन एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, object lies on angle bisector and object does not lie on the angle bisector. Angle bisector, हाँ? Angle bisector मतलब समझ रहे हो ना? 72 का angle bisector कहाँ पे होगा? 36 पे। तो इसमें total number of images is n minus 1. इसमें total number of images is equal to n. ठीक है सर ये भी अभी ऐसे ही याद रख लेना बस। करेक्ट, हाँ ये दोनों याद रखने हैं। तो ये और तो सिंपल है ना, देखो सबसे पहले n निकालो, n क्या हो जाएगा 360 बाई थीटा। फिर अगर n इवन आ रहा है तो सीधा आंसर n माइनस 1 हो गया। n ऑड आ रहा है, यही दो हैं अपने पास, इवन और ऑड वाले ही करने हैं। ऑड आ रहा है तो उसके लिए क्या करोगे, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, एंगल बाइसेक्टर पे है, तो ठीक है नंबर ऑफ इमेजेस n माइनस 1। अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, हाँ सर लेकिन हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि वो इमेज एंगल बाइसेक्टर पे है? नहीं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन गिवन रहेगा ना। ओके ओके। मिरर्स के बीच का एंगल, ऑब्जेक्ट का पोजीशन गिवन रहेगा। So can they ask us the angle between the two mirrors by giving us images? ओ तुम बोल रहे हो उल्टा ऐसा, ओ तो उस केस में कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है एक वाला ना। नहीं Yes sir, because then if they say like
5 and image is हाँ, हाँ, 5 हाँ। तो हमें पता नहीं चलेगा कि एंगल क्या है। करेक्ट करेक्ट, नहीं ठीक है। हाँ नहीं, ऐसे लेकिन सर आप लास्ट बोले 40 कि इयर्स में देखोगे। क्वेश्चन ही नहीं आएंगे ना ऐसे। हाँ, लास्ट 40 इयर्स में क्वेश्चन ही नहीं थे इसके तो यार, यू कैन सी। सर मतलब सोर्स अगर कुछ नहीं आएंगे। कहीं कुछ बुक्स में ना कुछ अगर कोई मान लो कोई इंजीनियरिंग फिजिक्स की बुक्स पढ़ रहा है तो उसमें दिया है, कहीं पे दिया रहता है, इसलिए मैंने करा दिया लास्ट। तो सर मतलब अगर वो एंगल बाइसेक्टर पे सर ऑब्जेक्ट तो फिर वो n इवन होगा, मतलब वही केस हो गया ना वापस से। हाँ, एन इवन हो गया तो ये सब देखना ही नहीं है ना, एन इवन तो अलग केस हो गया। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि वो और ये दोनों सेम ही हो गया ना फिर तो फिर। हाँ लेकिन सिर्फ उसको हम आंसर सेम है। ऑब्जेक्ट हाँ, लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर। हाँ उसको हम अलग केस में ही पढ़ेंगे ना। सर अभी स्फेरिकल मिरर था तो ठीक है, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा और। सो वेट एक और थोड़ा सा एक और कराना है, ये वाला बाकी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। वो तो सेम ही रहेगी ना। हाँ लेकिन थोड़ा सा कराने दो, इसमें सबको किया नहीं होगा सब लोगों ने। एक मिनट जाओ। तो मतलब जे ने स्क्रैप कर दिया ना ये वाले पार्ट को। ठीक है, ये वाला चलो गाइस। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, इसको भी अलग अलग केस में पढ़ लेते हैं। चलो केस 1, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये ठीक है। जो है मिरर, हाँ दोनों मूव कर सकते हैं गाइस, हमें दोनों केसेस पढ़ने हैं। ऑब्जेक्ट भी मूव कर सकता है और मिरर भी मूव कर सकता है, सभी केसेस हमें डिस्कस करना है। तो एक एक करके हम अगर दोनों मूव कर दे तो सर रिलेटिव मोशन होगा। करेक्ट, हाँ लेकिन हमें हाँ वेलोसिटी सर। निकालनी है। तो ठीक है, हम एक एक करके पहले केस बाय केस करते हैं। तो सबसे पहला हमने ले लिया ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड मिरर मूव पैरेलल टू इट्स प्लेन। मिरर अपने प्लेन के पैरेलल जा रहा है। जैसे मतलब से दिस बोर्ड इज द प्लेन, ठीक है। तो से यू आर से कोई ऑब्जेक्ट है ना, से दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कहाँ बनेगा? बोर्ड के एग्जैक्टली पीछे। हाँ सर। यस सर। दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। हाँ, अब मैं मान लो ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड को पैरेलली मूव करा रहा हूँ। बोर्ड इज जो है मूविंग पैरेलल टू इट्स प्लेन। तो इमेज किधर जाएगा? Image will move left. Opposite direction. सर रेस्ट पे रहेंगे ना दोनों। हाँ इमेज won't move. इमेज विल बी एट रेस्ट। अरे अगर मान लो क्यों मैं मूव करेगा? ये ऑब्जेक्ट थोड़ी मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मिरर सर दोनों रेस्ट पे है ना, बस मिरर ही तो मूव हो। हाँ वही ना। सर मिरर मूव मतलब इमेज भी तो मूव लेकिन होगा उसका ना। पोजीशन चेंज हो जाएगा ना। हाँ सर, मिरर मूव हो रहा है तो होना चाहिए ना सर। वो तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है ना। विद रिस्पेक्ट टू मिरर चेंज नहीं होगा। नहीं, इमेज का पोजीशन तो चेंज होगा ना। चांद सर को बोले एक रुको। जैसे जो है से दिस द ऑब्जेक्ट, इसका इमेज क्या होगा? एग्जैक्टली पीछे बनेगा। हाँ सर। यस सर। अब जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड इज द मिरर, तो मैंने क्या किया? बोर्ड को थोड़ा और पैरेलली खिसका दिया उस साइड। पैरेलल, आई हैव यूज्ड पैरेलल। मिरर मूव्स पैरेलल टू इट्स प्लेन। तो मिरर उधर पैरेलली मूव किया तो क्या अपने साथ साथ ऑब्जेक्ट को भी ले जाएगा क्या, या इमेज को भी लेके जाएगा उसके साथ साथ? नहीं सर। नहीं सर। तो उस केस में तो थोड़ा इमेज ये हो जाएगा, मतलब कट हाँ जाएगा, सर। हाफ थोड़ा कम होता जाएगा इमेज। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ। इमेज का लेंथ होएगा वो डिक्रीज होता जाएगा। लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। अरे Image will move in the opposite जो था वही direction. होगा ना? ना। सर सेम ही रहेगा सर, राइट? नहीं मूव करेगा। जो था वैसा ही How will होगा। the image move? कैसे उसका हाइट चेंज हो जाएगा? Please let's now speak. तो इमेज विल बी एट रेस्ट, इमेज विल नॉट मूव। अरे सिर्फ इसका इमेज ऐसी बनेगा ना पीछे, बस। Sir, parallel means the left or right direction. If the whiteboard moves in the left or right direction,
यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसमें इसका इमेज कहाँ बनेगा, एग्जैक्टली पीछे बनेगा, तो यहाँ पर है ना। यस सर। तो हाँ पैरेलल इसको आगे ले गए थोड़ा, पैरेलली आगे, तो स्टिल इसका इमेज यही बनेगा ना, हाँ, राइट। ऑब्जेक्ट को भी लेके गए सर। अरे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। सर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज हमेशा सेम रहेगा, लेकिन मिरर के रिस्पेक्ट में हिल जाएगा थोड़ा। हाँ सर, ये हाँ नहीं, सर नहीं, ऐसे हो सकता हम तो बोल रहे हैं वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है क्या हो गया, इमेज, देन इमेज विल नॉट मूव। सो क्या होगा, इमेज मूव नहीं करेगा, तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आएगी, 0। हाँ। तो इफ जैसे ये वाला केस क्या है, इस केस में से इफ दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मिरर जो है पैरेलली मूव करा रहे हैं, मिरर को पैरेलली मूव करा रहे हैं, तो उसका इमेज वहीं का वहीं रहेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है सर। लेकिन वो जो बोल रहे थे कि वो कट जाएगा, वो सब सर ऐसे क्यों नहीं हो रहा है सर? वो मिरर के रिस्पेक्ट में मूव होगा ना, ग्राउंड हाँ, के मिरर के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट में मूव होएगा ना सर। हम ग्राउंड के कभी सर भी हम समझ वेलोसिटी गए ऑफ सर। इमेज बोल रहे हैं, वेलोसिटी बोल रहे हैं, किसी के रिस्पेक्ट में बताया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट किसके रिस्पेक्ट में मानोगे, ग्राउंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या आएगी वेलोसिटी, 0 ना। अच्छा सर, अब समझा, ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ सर मिरर कभी भी इमेज के एक्सट्रीम पॉइंट को एक्सटेंड नहीं करेगा ना, किसके एक्सट्रीम पॉइंट को, इमेज के, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके एक्सट्रीम पॉइंट को मतलब कभी एक्सटेंड नहीं करेगा ना मिरर, अगर उसको हम लोग पैरेलली मूव करते हैं तो। नहीं, पैरेलली मूव करेंगे तो वैसे का वैसे रहेगा ना, ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर, मतलब इमेज क्यों मूव करेगा, ऑब्जेक्ट वहीं पे है, इमेज भी वहीं पे रहेगा बस। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ प्लेन मिरर अगर हम लोग मूव करेंगे तो अगर इमेज का एंड पॉइंट समझो राइट पार्ट है, जैसे देखो जैसे ये वाला मिरर, ये है ऐसा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका इमेज यहाँ बनेगा, यस। और ये जो है ना प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर ऐसा है, यस। अगर आपने उसको पैरेलली टू द प्लेन के पैरेलल मूव कराया, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा यार, इसका इमेज पहले यहाँ पे था मिरर, हाँ आपने इधर मूव कराया तो उसका इमेज यहीं बनेगा ना, इसमें भी। ओह ठीक है। पर इमेज दिखेगा नहीं ना, वो ऑब्जेक्ट को नहीं दिखेगा ना बस। अरे वो तो हम बोल रहे हैं, हम तो पोजीशन दिखना उठना इंटेंसिटी, हम बोल रहे हैं पोजीशन ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं ना। ओके ठीक है सर जब तक हाँ सर मिरर समझ गया सर, समझ गया। है ना, हाँ, दिखना कैसे दिखना, एज को कट करना, वो सब नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इमेज का पोजीशन चेंज होगा या नहीं होगा, इस नो केस में। सर, नो नहीं होगा। So if the position of image does not change, therefore velocity of image is 0. ठीक है ना? Yes sir. चलो यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, फर्स्ट केस। तो इस केस में कैसा है देखो, हाँ, अब जो है तो मिरर का मूवमेंट कैसा है, पैरेलल टू इट्स प्लेन, प्लेन के पैरेलल गाइस। हाँ, तो जैसे ये उसका प्लेन है ना, प्लेन उसके पैरेलल, जैसे ये ऑब्जेक्ट भी होता, मान लो ये ऑब्जेक्ट होता तो उसका इमेज कहाँ बनता, पीछे, राइट। ये ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज यहाँ पीछे बनता, ठीक है। अब आप मान लो उसको पैरेलली ऐसे खिसकाओगे, स्टिल इसका इमेज यही बनेगा ना, नॉर्मल डिस्टेंस, वही केस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट केस। अब जो है ये बताओ, फर्स्ट केस, सेकंड केस करते हैं, ठीक है। कैन आई इरेज दिस वन? यस सर। ओके, सेकंड केस 2। हाँ, Can you explain that thing with the duster? duster से you want me to explain क्या? So that you use the duster and that pen cap to show. Can you show it once again? I'm not kind of understanding. देखो ये वाला जो है, blue is the object and black is the image. Okay sir. अब एक रुको, फिर blue is the object, अब उसके बाद आपने क्या किया, this is a mirror, ये इसका रिफ्लेक्टिंग Duster is the mirror, right? हाँ, अब पैरेलली डिस्प्लेस करोगे तो स्टिल उसका इमेज तो वही बनेगा ना। हाँ हाँ. Yes, understood.
So that means if object is stationary and the mirror moves parallel to its plane, velocity of the The image image is 0. ठीक है. मतलब सर वो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर हुआ तो फिर होएगा कुछ वेलोसिटी, लेकिन अभी तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे ले रहे हैं, इसलिए नहीं हाँ, होएगा. ग्राउंड के रिस्पेक्ट, अभी विद रिस्पेक्ट टू मिरर बात ही नहीं कर रहे हैं. हाँ भाई, इसलिए थैंक यू सर. चलो ठीक है. फिर अब जो है ऑब्जेक्ट, अब जो है मिरर इज एट रेस्ट एंड नहीं रो रहा है बोला तो ऑब्जेक्ट यौन करेगा तो पानी नहीं आता क्या आँख में? अरे इसका क्या बोला? गाइस प्लीज स्टॉप योर माइंड. हाँ, ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर. चलो ठीक है. हाँ, अब ये बताओ, मिरर रेस्ट पे है तो मिरर इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है भाई. तो से दिस इज योर मिरर, ये ऐसा है ना. अब ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है? Parallelly. पैरेलल का मतलब ऐसा है ना. Velocity of image is equal to velocity of object. डोंट टेल एक मिनट को. देखो ये ऐसा है पैरेलल. देखो गाइस, पैरेलल ऐसा भी जा सकता है, प्लेन के पैरेलल, और प्लेन के पैरेलल ऐसा भी. चलो हाँ, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है ब्लू वाला, इमेज यहाँ कहीं ब्लैक वाला यहाँ मरेगा. अगर 2 सेंटीमीटर इधर मूव किया तो इमेज भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर तक खिसक जाएगा. अगर ये 2 सेंटीमीटर ऊपर गया ऐसा पैरेलल, तो इमेज भी क्या होगा, इधर 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा. तो स्टूडेंट्स, हाँ प्लीज टेल व्हाट इज द आंसर इस केस में. सर इक्वल velocity of image is equal to velocity of object. सर हम सब जगह विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले रहे हैं ना. हाँ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर भी लेना पड़ता है क्या कभी? नहीं, वो तो हम निकाल लेंगे ना बाद में. वो तो रिलेटिव वेलोसिटी का डेफिनेशन यूज करेंगे, उससे निकाल लेंगे. लेकिन सर अभी तो कोई मतलब फायदा नहीं होगा ना वो लिख के. तो जब दोनों मूव कर रहे हैं तब हमें रिलेटिव लेना पड़ेगा, तब काम कर रहेगा वो. अभी के लिए कुछ मतलब यूज नहीं रहेगा ना उसका. हाँ, अभी उसका नहीं है, लेकिन ठीक है, हम निकालना पड़ा तो निकाल सकते हैं ना. यस सर. ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ पर What happens if it's यहाँ not पे parallel to वेलोसिटी. the plane? एक मिनट रुक जाओ, मुझे बताने दो. तो यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पे वेलोसिटीज इधर जीरो थी या नॉन जीरो थी? जीरो थी तो ठीक है. नॉन जीरो, जब वेलोसिटी नॉन जीरो है मतलब कुछ वेलोसिटी की वैल्यू है, साइन अलग हो जाएगा सर. एक मिनट गाइस, डोंट डिस्कस एनीथिंग. देखो, अब अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो रही है? पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर. पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर. देखो यहाँ पर मिरर की वेलोसिटी उसके प्लेन के पैरेलल, या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्लेन के पैरेलल. तो ये दोनों केसेस में velocities are either zero or parallel to plane of mirror. plane of mirror. ठीक है गाइस, तो प्लेन ऑफ मिरर में वी हैव क्लैरिटी एवरीबॉडी. पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर में किसी को डाउट? सर हाँ सर, वो पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर हम इसलिए बोल रहे हैं सर क्योंकि ऑब्जेक्ट को भी हम वैसे ही मूव करवा रहे हैं पैरेलल, इसलिए. हाँ, इसलिए उसका इमेज भी वैसे ही होएगा वैसा. करेक्ट. हाँ, मिरर के प्लेन के पैरेलल जाएगा. ठीक है, थैंक यू सर. अब वो, हाँ, वन स्टूडेंट वाज आस्किंग अबाउट नॉर्मल. अब नॉर्मल वाला करते हैं. पहले इसमें क्लैरिटी लाओ सबको. किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर. ओके. तो गाइस, कैन आई रेज दिस वन? सर एक मिनट सर, क्या लिखा? एक मिनट सर. लास्ट में क्या लिखा है? 1 minute wait please. तो ये वाला velocities are either zero or parallel to plane of mirror. ऑब्जेक्ट है, इमेज का सर. हाँ नहीं, velocities किसी का भी. हाँ, velocities of object या mirror किसी का भी. हाँ, so you want me to write क्या? velocities of object or mirror are either zero or parallel to plane of mirror. ठीक है. चलो ठीक है. अब वन स्टूडेंट वाज आस्किंग नॉर्मल वाला. चलो नॉर्मल वाला करते हैं. तो नॉर्मल वाले के लिए गाइस, इसमें किसी को डाउट प्लीज आस्क.
सर वो हम ऐसे मूव करें इसलिए वो पैरेलल, सर हम अलग को ऐसे डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं ना, वो नहीं पैरेलल होगा वैसे। अरे देखो देखो एक एक करके करते हैं ना केस, मतलब सिचुएशन बाय सिचुएशन, और एक साथ सब पढ़ाएंगे तो कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाएगा। अच्छा मतलब सर आपने ये 2 केस का कंक्लूजन लिखा है बस? अभी तो सिर्फ ये निकाला है ना, जब प्लेन के पैरेलल हो। पहला क्या था, अगर जो है मिरर रेस्ट पे है और ऑब्जेक्ट जो है, या वैसा भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मिरर अपने प्लेन के पैरेलल मूव कर रहा है, तो कोई ये नहीं होगा, है ना। ऑब्जेक्ट रेस्ट में, इसमें भी देखो गाइस वही आ रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मिरर अपने प्लेन के पैरेलल मूव कर रहा है, velocity of image 0 because velocity of object is 0. As velocity of object is 0, velocity of image is 0. तो इस केस में भी वही आया, velocity of image is equal to velocity of object. फिर सेकंड केस क्या था भाई, मिरर रेस्ट पे है ना, मिरर रेस्ट पे है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर, पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर। इसमें भी प्लेन के उसके पैरेलल मूव किया, तो ये ऐसे जा सकता है प्लेन के पैरेलल, सॉरी प्लेन के पैरेलल इधर जा सकता है, इस साइड या इस साइड, राइट? यस सर, ओके। चलो अब सर ये हो गया। सर इन दोनों केस में वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना? ग्राउंड के रिस्पेक्ट, करेक्ट, ग्राउंड के। सर अगर ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों मूव करे तो एक मिनट, नहीं किसमें यह केस, हाँ कराता हूँ, जाओ। मतलब तुम बोल रहे हो कि नॉर्मल वाले में कैसे होगा, वो वाला बोल रहे हो ना, कराता। हाँ एक मिनट, ठीक है। अब देखो, सो थर्ड केस में जो है केस 3 में जो है, अब वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर आर अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन। ओके गाइस, आप लोगों का क्वेश्चन ये था, ठीक है ये वाला कर लेते हैं। तो ये वाला मिरर हो गया भाई, इसका नॉर्मल किधर आएगा? जैसे ये मिरर है, मैंने इसका नॉर्मल इधर ऐसे ड्रॉ करना है, तो नॉर्मल ये हो गया। चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसका इमेज किधर आएगा? इस ऑब्जेक्ट का इमेज राइट साइड पे, राइट डिस्टेंस, सेम लेंथ, हाँ सेम डिस्टेंस पे। हाँ सर। सो दिस इज मिरर, यू आर सेइंग कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हाँ सेम होना चाहिए। ठीक है भाई, अब इसको ओरिजिन ले लेता हूँ यार, इसको ओरिजिन ले लेता हूँ और इसको पॉजिटिव डायरेक्शन बोलता हूँ। तो इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन आएगा? नेगेटिव होएगा ना, तो नेगेटिव हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड नेगेटिव और साइन क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन वो रहेंगे डिफरेंट, y सेम रहेगा। एक मिनट गाइस देखो, तो कैन आई राइट, अब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इज दिस करेक्ट? यस सर। यस। इसमें किसी को डाउट? अब इसका टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, तो टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यस सर। यस सर। सर आपने वो x कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिया है ना? यस। ओके सर। अब इसका मुझे बताओ एक्सपेंशन क्या होगा? vi माइनस vm ना, va ये था ना रिलेटिव वेलोसिटी, va/b इज va माइनस vp। हाँ सर। हाँ सर, इसका vm माइनस vo होगा, vm माइनस vo, क्योंकि माइनस साइन है आगे, इसको इधर ले जाते हैं, तो vi इज इक्वल टू 2vm माइनस, ठीक है क्या गला? सर आप वो डस्टर पेन कैप के साथ एक बार वो पोजीशन समझा सकते हो क्या इस केस का? देखो इसमें जो है, अब जो है जैसे से एक ये दिस इज द मिरर, ये वाला ब्लू इज द ऑब्जेक्ट एंड इसका ये जो हो गया इमेज। हाँ। तो अब जो है क्या होगा, जितना ये डिस्टेंस, ये अगर इसको ओरिजिन लेते हैं, इफ यू टेक दिस एज पॉजिटिव, सो इसका अगर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है तो ब्लू वाले का उतना ही नेगेटिव कोऑर्डिनेट होगा। हाँ। सो दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे विल बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट साइन। हाँ। फिर नाउ यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगा, ये वाला वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी बन जाएगा।
और क्या इसका एक्सपेंशन रिलेटिव वेलोसिटी va स्लैश b इज va माइनस vb, हाँ और ये vo माइनस vm, vo हाँ माइनस vm विद माइनस साइन विल बिकम vm माइनस vo। हाँ तो फिर ठीक है हम सर। इसको जरा गाइस, ये कौन से डायरेक्शन के लिए था ये वाला, ये रिलेशन कौन से, ये नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल डायरेक्शन के लिए। सर मतलब मुझे नॉर्मल डायरेक्शन मतलब समझा नहीं। नॉर्मल कौन से डायरेक्शन में, जैसे ये हो गया ना, परपेंडिकुलर टू द मिरर। एक मिनट रुक जाओ, देखो जैसे ये मिरर है, अरे ये मिरर है, फिर हम इसके ये ऐसा नॉर्मल डायरेक्शन, ये बंदा आगे जा रहा है। ओके ओके सर, वो लेंथ डिक्रीज हो रही है वो। हाँ, जैसे ये मिरर है बंदा, और ये बंदा आगे जा रहा है, तो उसका इमेज के पास आएगा ना। हाँ सर। ऐसा सर इसमें वेलोसिटी ऑफ मिरर भी परपेंडिकुलर के अलॉन्ग ही है ना? यस यस, नॉर्मल के अलॉन्ग। सर कोई एक ऐसा केस आ सकता है मतलब कि मिरर V1 से जा रहा है और इमेज ऑब्जेक्ट भी V2 से जा रहा है तो। ओके एक मिनट जाओ, ठीक है मैं बताता हूँ, चलो करते हैं एक कर, चलो करते नहीं हैं। सर, कि दोनों चल मतलब दोनों के वेलोसिटी दोनों जा रहे हैं और दोनों के डिफरेंट वेलोसिटीज है, फिर क्या तो होगा? ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, ये फॉर्मूला में दिया है ना। सर एक मिनट V0 क्या है? सर, एक मिनट रब मत करो सर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके 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 सर। सर यहाँ पे मिरर रेस्ट पे है ना? नहीं, अगर हमने तो जनरल फॉर्मूला निकाल दिया, मिरर भी मूव कर रहा है तो उसमें भी वैल्यूज डाल के निकाल सकते हो। एक मिनट रुक जाओ, करता हूँ। ओके सर। कैन आई रेज दिस वन? नो सर, नो सर, Yes, 2 मिनट सर। अरे जल्दी करो, आज तो स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करने दो जल्दी। हाँ सर, डन। कैसे का 10 मिनट बाकी है। हाँ थोड़ा सर, सा 10 एटलीस्ट बाकी सर है। वेट, सर एक थोड़ा सा स्टार्ट करने दो, लेकिन लेकिन क्लास अगर होने वाला है। एंगल थीटा पे चल रहा है नॉर्मल से, तो ब्रेक कर देंगे ना। हाँ, कंपोनेंट्स ब्रेक कर लेंगे ना, और दोनों को इक्वेट कर लेंगे ना, एक्स और वाई को। मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट्स को करेंगे ना। एक पहले मेरे को ये वाला तो बताने दो। कैन आई रेज दिस वन? यस सर। चलो पहले इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले हम अभी नॉर्मल डायरेक्शंस का एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं। सो ये मिरर है, फर्स्ट केस, ये ऑब्जेक्ट से 2 मीटर पर सेकंड, तो उसके इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? सर 2 मीटर पर सेकंड। 2 i कैप है, 2 मीटर पर सेकंड। -2 मीटर पर सेकंड होगा ना। vi इज इक्वल सर मिरर रेस्ट पे। नहीं सर, मिरर सेम रहेगा दोनों का, मैग्नीट्यूड भी। मिरर रेस्ट पे है ना। अच्छा हाँ तो सर -2 आना चाहिए। हो गया। अब ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? से दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो ये कितना हो जाएगा 2i कैप। तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? -2i कैप। चलो ठीक है। अब सपोज ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है भाई, और मिरर इधर भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड। इमेज की वेलोसिटी बतानी है। 4 मीटर पर vi 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे 2 into 2i cap. vi is what? 4i cap. अगर जो है, चलो इसको भी चला दो भाई, इसको चला दो 2 मीटर पर सेकंड। इसको कितने से भगाना है? 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका इमेज बताओ। -6 आई कैप। देखो 2 into 2i cap minus vo कहाँ गया ये वाला 10? ये हो गया -6 आई कैप। ठीक है गाइस, ये वाला। यार एक जल्दी एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट वाला करके बताओ जल्दी। क्या? हाँ क्या प्लीज टेल अगेन। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने से फर्क पड़ेगा भाई? वेलोसिटी का यू वांट टू चेंज डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन चेंज करना है क्या आपको? किसका डायरेक्शन चेंज करना है? यू वांट टू चेंज इसका। अगर इसका चेंज करें तो यहाँ माइनस आ जाएगा।
हाँ, जिसका भी डायरेक्शन चेंज करोगे यू विल पुट अप विद द साइन और माइनस साइन या प्लस साइन जो भी अकॉर्डिंग टू। ये अंडरस्टूड ना? स्टूडेंट आई कैन नॉट हियर यू, प्लीज टेल अगेन। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। Can anybody hear his voice? I cannot hear his voice. No, sir. No, We sir, cannot. no, No, sir. No, sir. No one can hear. यार एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट वाला जल्दी करो। सर हाँ सर इसको रिलेटिव से कैसे करेंगे? मतलब नहीं टू अरे ये ला डायरेक्टली ये ला फॉर्मूला यूज करना है, vi is 2vm minus vo। अच्छा सर हम ऐसा नहीं कर सकते वेलोसिटी ऑफ मिरर को 2 मीटर पर सेकंड लेफ्ट में दे? नहीं ये हमने डिराइव किया है ना, उसी को यूज करेंगे। हाँ ठीक है था, ठीक है। ये गलत है ना सर ऐसे करना? हाँ नहीं इससे करो डायरेक्टली, हमने तो ये तो प्रॉपर डेरिवेशन से किया ना। यस सर। कैन आई इरेज दिस वन? यस सर। सर एक मिनट। ओके गाइस फर्स्ट वाला जल्दी करो, एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट। सर हो गया। ना क्या? ओके ठीक है, कैसे किया? सर 1 मिनट रुक जाओ। पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज सर 1 निकाला। मिनट दो ना। हाँ सर इसे रिलेटिव से तो कर ही सकते हैं। एक मिनट कहाँ गया है? सर चैट बॉक्स पे लिखूं क्या? नहीं एक मिनट आपने एक्सप्लेन करो ना। मिरर कहाँ पे है? मिरर इज ऑन अ बाइसिकल। ठीक है, ये मिरर कितने से भाग रहा है? वी मिरर v से भाग रहा है और ये पर्सन किधर भाग रहा है? यू से राइट साइड में। उसी की तरफ है क्या? हाँ यस सर। ओके तो अब इससे वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी। 2v minus u। एक मिनट जाओ, 2vm minus vo। 2 vm कहाँ गया? v। हाँ 2v minus u आ गया। हाँ ठीक है 2v minus u आ गया, फिर बाद में velocity of object with respect to image। हाँ सर। नहीं ये तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया ना। हाँ नहीं सर Sir, पूछा but है इमेज का नहीं क्वेश्चन अलग है ना। पर्सन अप्रोचेस इमेज, ऑब्जेक्ट निकालना है, इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ओके they object with respect to ऑब्जेक्ट image। विद रिस्पेक्ट टू इमेज। ऑब्जेक्ट विद हाँ रिस्पेक्ट सॉरी हाँ वही कोई सा भी मैग्नीट्यूड डाल लेंगे ना, रुको कोई सा भी होगा। ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज का तो u कोई सा माइनस तो ये vo वेक्टर माइनस vi वेक्टर। ओके ठीक है, ये निकालना था क्या? ये वाला क्या हो गया भाई? u हो गया और ये क्या है? vi कितना आया? 2v minus u आया। तो ये कितना आ रहा है यार ये वाला? सर 2 times u minus u v। minus v। ओके तो इसका मॉड स्पीड निकालना है क्या? मतलब मॉड नहीं सर यही नहीं सर आंसर ऑलरेडी है। आंसर दिया है ऑप्शन डी। सर u और v का एक्चुअली ग्रेटर देन कुछ ऐसे रिलेशन दिया नहीं है, तो मॉड लेके भी कुछ होगा नहीं। चलो ठीक है गाइस अब 5 मिनट से मुझे जस्ट स्टार्ट करने दो वाला, और उसका वेदांत का आंसर मैं कर दूंगा ना। एक क्वेश्चन उसने पूछा था यार। ओके सर ठीक है वेदांत को म्यूट करो। कैन आई रेज दिस वन? एवरीबॉडी अंडरस्टूड ना ये वाला? यस सर। यस सर। सर तो ये स्टैंडर्ड जो है फॉर्मूला वो याद ही रख रहे हैं ना अभी, vi is 2vm वाला। हाँ vi is 2vm minus vo और वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल के लिए। स्फेरिकल मिरर ठीक है। स्फेरिकल मिरर के लिए पहले हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट? यू टेक अ हॉलो ग्लास स्फीयर। तो हॉलो ग्लास स्फीयर लिया आपने और ये ऐसा ठीक है, इसको कट कर दिया इस साइड से। तो कट किया, ये चंक बाहर आया साइड का, ये वाला चंक। अगर आपने जो है इस साइड बैक साइड यहाँ पर पॉलिश उसके ऊपर रेड पेंट लगाया सच दैट दिस साइड इज रिफ्लेक्टिंग, तो ये कौन सा मिरर कहलाता है? कॉनकेव। ओके फिर
वही हॉलो ग्लास स्फीयर का अगर आपने इस साइड कट किया और आपने पॉलिश और रेड पेंट इस साइड लगा दिया, पॉलिश के उसके ऊपर रेड पेंट, such that ये वाला Convex mirror. so this is convex mirror. Please copy this one. तो एक तो हो गया कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। तो हॉलो ग्लास स्फीयर से यू कंस्ट्रक्ट। सर वो हॉलो ग्लास स्फीयर का सिग्निफिकेंस क्या है? नहीं, एक्चुअली इट्स अ स्फेरिकल मिरर, तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ऐसा बताने के लिए। ओके सर, थैंक यू। हाँ, वो सब बताते हैं ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसके लिए। हाँ ठीक है, तो पहला पॉइंट, ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं भाई। पोल कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये वाला ना, मिरर का ये वाला पॉइंट ना, उसको पोल बोलते हैं, सेंटर, सिमेट्रिकल पॉइंट वाला। और जो है फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल रिपीट कर सकते? पोल मतलब ये मिरर का ये वाला पार्ट, बीच का पार्ट है। अच्छा ठीक है, ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? Center of the sphere. Center of the sphere. Of which the Point through which principal axis passes. नहीं, सेंटर ऑफ स्फीयर whose part is this spherical mirror? Is the center of sphere whose part is this spherical? तो उस स्फीयर का सेंटर जिसका ये स्फेरिकल मिरर पार्ट, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? Radius of the sphere, of which the spherical mirror is a part. डिस्टेंस बिटवीन, रेडियस भाई देखो, वही से मिरर का कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये वाले मिरर का, to the middle. और जो है कोई से पॉइंट और ज्वाइन कर दो, तो डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन मिरर एंड क्या? Center of curvature. Center of curvature. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो है गाइस देखो, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग होगा सरफेस, जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो दिस विल एक्ट एज अ नॉर्मल, दिस विल एक्ट एज अ नॉर्मल। Yes, sir, perpendicular to the mirror. हाँ, पहले वाला लिखना है। So these normals will always pass through the radius of curvature, right? Normal will always Center of pass through curvature. center. Sorry, center of curvature. पहले वाला लिखो, distance between any point on mirror and center of curvature is radius of curvature. फिर लिखना है the line joining any point on mirror and center will act as a normal for reflection. So can you please repeat this? हाँ, Yes. इसके लिए line joining any point on mirror and center, line joining any point on mirror and center will act It's a normal. will act as normal for event of reflection. Line joining any point on mirror and center will act as normal for event of reflection. यार टाइम हो गया क्या? ठीक है वेदांत, तुम्हारा डाउट रह गया यार। या गाइस थोड़ा देर रुक सकते हो ना? थोड़ी देर रुक सकते हो ना? हाँ सर। प्लीज वेट। ठीक है,
ठीक है guys, can I erase this one? Yes, sir. Yes, sir. अब जो है So screenshots will be sent, right? क्या क्या क्या? Screenshots will be sent, right? Yes. हाँ, पूजा will say. एक जो मिस हुआ था गाइस, दूसरे स्टूडेंट्स उन्हें ले लिया, they will send. एक मिनट, वेदांत का क्वेश्चन मैं आई विल आंसर. वेदांत, उसके पहले मुझे एक सिंपल ज्योमेट्री का मुझे करके बताओ. हाँ, आपको दिया है Yes, sir. इंसिडेंट रे is parallel to principal axis. ठीक है ना? इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये जो है एक मिरर, ये स्फीयर का पार्ट था यहाँ पर. Yes, sir. ये उसका सेंटर, ये सेंटर हो गया. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. अब रे कैसा है भाई? पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. ये इंसिडेंट रे आ रही है, तो इवेंट होने वाला है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के लिए देयर इज ओनली वन लॉ, I इक्वल टू R. ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो I इक्वल टू R के लिए व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन टू बी डन? I कैसे निकालेंगे भाई? सर वो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे अभी. सेंटर ऑफ, यहाँ पे ड्रॉ करोगे. नॉर्मल किससे पास होगा यार? यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से. तो ये नॉर्मल हो गया, यहाँ से नॉर्मल. So this is a normal. Say if this is angle of incidence theta. Angle of theta. ये थीटा, तो ये कितना होगा? थीटा. क्यों? सर वो पैरेलल बोला ना आपने, इंसिडेंट रे पैरेलल ना. ऑल्टरनेट एंगल्स ना. ऑल्टरनेट एंगल उसी के कारण ऑल्टरनेट एंगल्स है. ठीक है. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, यहाँ पे रे ने स्ट्राइक किया, ये पोल है, यहाँ पे स्ट्राइक, यहाँ से ये एंगल थीटा होगा. यस. अब ये रे यहाँ पे वापस आया, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आ गया. ठीक है. यस सर. अब मुझे जो है, यू प्रूव इट, Pi is equal to R minus R by 2 cos. Prove. ये डिस्टेंस R तो उसका रेडियस है ना? यस सर. R minus R by 2 cos थीटा प्रूव करना है भाई. अच्छा. ये थीटा है, तो ये थीटा कैसे हुआ? सर वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. गुड. I इक्वल टू R. अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहला मैं कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करता हूँ. यहाँ से मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ. ये 90 हो गया. यस सर. ये थीटा हो गया. हाँ वो तो है ही सर. ये थीटा है. ये दोनों एंगल 90 है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. यस सर. सम 180 होना है ना? हाँ सर, सिमिलर है वो दोनों. तो दैट मींस ये दोनों ट्रायंगल्स, और इट हैज अ कॉमन साइड, तो दैट मींस ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. कॉन्ग्रुएंट हो गए अभी. हाँ अभी कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? C to A R. अगर C to A R है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा ये वाला? ये R by 2. हाँ R by 2. ये R by 2 आ गया. अब ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल cos थीटा. cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी राइट एंगल ट्रायंगल में यार? सर फिर IC की वैल्यू आ जाएगी. एक मिनट को, cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज. R by 2 अपॉन IC. हाँ सॉरी तो हाँ हमने IC equals R by 2 cos theta. एक मिनट को, और ये जो है C to B अपॉन IC. C to B की वैल्यू कितनी है? R by 2. और ये cos थीटा, ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. CB क्या है? R by 2 अपॉन cos थीटा. अब ये IC आ गया यार, IC की वैल्यू आ गई R by 2. PI कैसे निकालेंगे? सर PC minus IC. PC minus IC. PC minus IC. R minus R by 2. R minus R by 2 cos. ठीक है. सर I एग्जैक्टली है क्या? तो I नहीं, एक्चुअली क्या था, अगर जैसे एक हमने मान लो पैरेलल इंसिडेंट रे भेजा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है,
तो पोल से लेके आई का डिस्टेंस को वी हैव कॉल्ड एज पीआई। सर तो इससे हमने प्रूव किया कि पी पे कभी पहुंचेगा ही नहीं ना रे। रुको अभी, नाउ वेदांत क्वेश्चन वाज कि क्या ये यहीं पे पहुंचेगा, क्या पीआई 0 हो सकता है? नहीं सर। वेदांत व्हाट इज योर आंसर? पीआई 0 करके देखते हैं, चलो। ओके सर। 60 डिग्रीज हो सकता है व्हेन थीटा 60। किस वैल्यू थीटा हो सकता है? थीटा इक्वल टू किसके लिए हो जाएगा? 60 डिग्री। तो 60 डिग्रीज के लिए व्हाट विल हैपन रेज, व्हाट विल हैपन कि ये जो रे आएगा और यहाँ पे आके स्ट्राइक कर जाएगा। हाँ ओके सर। वेदांत दिस वाज योर क्वेश्चन ना, ये वाला? यस सर यही था। और सर फिर वो सिमेट्री के कारण वो वापस मिरर को स्ट्राइक करेगा एक बार और वापस सी पे आ जाएगा ना? हाँ, फिर ऐसे आया, इधर जाएगा, फिर यहाँ ऐसे निकल जाएगा। अच्छा हाँ ओके। सर उसका क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हो? भाई उस केस में कितने रिफ्लेक्शंस हो गए? 1 2 3 फिर निकला ना, उसको तो 2 रिफ्लेक्शन चाहिए था ना। सर ऐसा अच्छा ओके सर, अगर सी से किया तो ऐसा नहीं होगा ना पॉसिबल? सी से? अरे हाँ ये सी तो से ऐसे ए आगे चला जाएगा ना वापस। हाँ नहीं सर, अगर सी से ए पे गया तो सेम डायरेक्शन में वापस आ जाएगा ना? कंडीशन में पैरेलल है ना, पैरेलल इंसिडेंट है। हाँ ओके यस सर। तो वो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का क्या पता रहता है? आप एक्सप्लेन करो सी ना। से जाएगा तो परपेंडिकुलर है तो वापस वही लाइन ट्रेस करेगा ना। करेक्ट। हाँ वही हाँ। सर किसी का डाउट था? हाँ प्लीज आस्क। सर वो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का एक्सप्लेन करो ना। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम था, थीटा आ गया था। हाँ ये दोनों 90 थे। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सर? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन। ओके तो सम ऑफ द ट्रायंगल्स 180 है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा। हाँ एंड दिस ट्रायंगल हैज वन कॉमन साइड। हाँ सो दिस बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सर एक सेकंड ना सर। भाई एंगल सबके सेम है। आरएचएस से 3 एंगल सेम है। एंगल आरएचएस टेस्ट वैसे भी आइसोसेली से हो। एक साइड कॉमन भी हो गया ना यार। हाँ तो अब कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गए। यस। तो टोटल ये पूरा यहाँ से यहाँ आर है, तो एक की वैल्यू क्या होगी? r/2 हो जाएगी। हाँ अब ये r/2 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ा। बाद में वाला बात का पता चला। ओके थैंक यू सर। ओके सो गाइस ठीक है, फिर आज थोड़ा लेट हो गया। हाँ ओके, ये समझ में आया ना सबको? यस सर वो नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस में क्या डाउट मतलब डिफरेंस है? नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं, नॉर्मल तो हर पॉइंट पे बन सकता है, किसी भी यू टेक द पॉइंट ऑफ मिरर और नॉर्मल यू कैन ड्रॉ एनीवेयर ऑन द पॉइंट ना। और प्रिंसिपल एक्सिस जो है जैसे ये है ना, देखो यहाँ पर पहले मिरर लोगे, उसका पोल डिसाइड हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस डिसाइड हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस विल पास टू बोथ ऑफ देम। हां और नॉर्मल किसी भी पार्ट में सर। ओके गाइस, ये वाला प्लीज कॉपी, ये वाला यूज करेंगे हम एक क्लास। इट वाज अ गुड क्वेश्चन सो आई आंसर्ड। तो एक पूछना था। ये मेन क्वेश्चन। हाँ क्या सर ये मेन क्वेश्चन किधर से आया था? लाइक ये प्रूव दैट वगैरह? नहीं, वो तो मैंने ही यूज किया, इसको मैंने यूज करना है। तो उसने क्वेश्चन पूछा था तो इसी के सिमिलर था। उसने यही पूछा था कि यहाँ पे पास जा सकते हैं क्या। ये आज का लास्ट टॉपिक है, जा सकते हैं। रिपीट द क्वेश्चन सर। तो ये हाँ सर मुझे एक जनरल डाउट था, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह बना है ना, वो एक्सपेरिमेंट है कि ऐसे वो मैथमेटिकल उसके कुछ प्रूफ्स है वगैरह? नहीं हमने वो I = R। हाँ I = R। और अभी ये स्फेरिकल मिरर्स का भी तो लॉज ऑफ ये है ना रिफ्लेक्शन वगैरह, तो उसका भी ये I = R जो है, नहीं I = R हाइजेंस प्रिंसिपल आगे जो पढ़ोगे उससे डिराइव हो जाता है। अच्छा अभी के लिए जरूरत नहीं है। I = R हाइजेंस प्रिंसिपल है, आगे 12th में पढ़ोगे उससे डिराइव हो जाता है। सर हमको वो PI = R - R/2 cos थीटा, सर वो मतलब क्या यूज होएगा सर वो प्रूफ करके, मतलब हमको किसका आंसर मिलेगा? वो सर दिखा रहे थे कि वो 0 हो सकता है।
उसके लिए। नहीं देखो, एक्चुअली मैंने ये वाला कराने का भी एक एम था, याद है गाइस, आपने 9-10 में पढ़ा है कि इंसिडेंट रे आया और सीधा जो पैरेलल रे आ रहा है और वो किस पॉइंट से पास होता है? फोकस। फोकस आपने क्या बोला था? r/2 बोला था। हाँ सर। फोकस F = r/2। लेकिन वहां पे 9-10 के लेवल में आपको पूरा पढ़ाया नहीं जा सकता, तो इसलिए उन लोगों ने पूरा नहीं बताया। उन लोगों ने उस लेवल पे ये बताया कि हाँ ठीक है, पैरेलल रे तो कहाँ से पास होगा? फोकस से। लेकिन यहाँ पे मैं कंडीशन पुट अप करने वाला हूँ कि वो कब होगा? जब एंगल छोटा होगा ना, व्हेन cos थीटा इज स्मॉल एंगल, थीटा स्मॉल एंगल के लिए cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो r - r/2 क्या हो जाएगा? r/2। r/2। अच्छा सर, मतलब स्कूल के इसमें वो लोग ने अज्यूम कर लिया कि वो थीटा छोटा एंगल है। थीटा छोटा है। थीटा 9th क्लास में जो आपको पढ़ाया गया था वो स्मॉल एंगल्स के लिए पढ़ाया गया था, वो एक था बताने का। सर हमें बोलते भी थे दैट इट इज अ बिग स्फेरिकल मिरर ऐसे करके। अच्छा तो सर ये अभी ट्रू ही नहीं ना कि हर बार पैरेलल रे सॉरी एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हर बार सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी फोकस से पास करेगा। हाँ, इट्स नॉट ट्रू फॉर ऑल केसेस, लेकिन जो है हम जो पढ़ते हैं उसमें रेस जो होते हैं हमारे जो कोर्स में ना, हमारे जो सिलेबस में है उसमें रेस क्या है जिसमें एंगल छोटा होता है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, प्लीज कॉपी तो हम करेंगे कि फोकस पास करता है। हाँ, हम यही वाला करेंगे कि पैरेलल रे फोकस से पास करता है, वही हमारे सिलेबस में। लेकिन जस्ट मैंने बता दिया कि यू शुड नो फॉर स्मॉल एंगल्स। हाँ, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको लिखवा मतलब और इस पे कुछ पॉइंट्स और ऐड करवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए प्लीज कॉपी ऑल दिस। हाँ तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे कुछ डाउट पूछा था, आपने आंसर नहीं किया। एक मिनट, क्वेश्चन क्या था? प्लीज टेल। सर वो मिरर्स के ऊपर था, इमेज और लेंथ ऑफ इमेज और डिस्टेंस कितना रहना चाहिए उसके ऊपर। क्या? प्लीज टेल अगेन, कैन यू टेल मी अगेन? सर एक सेकंड में आपको पूरा आंसर ही रीड करके बताता हूँ। एक मिनट, कैन आई इरेज दिस वन इफ एवरीबॉडी हैज कॉपी? कैन वी लीव? नो। हाँ प्लीज हाँ गाइस, क्लास इज ओवर, यू गाइस कैन लीव। हाँ सर ये जो आई पॉइंट है वो कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट है ना? आई पॉइंट इज एनी आर्बिट्री पॉइंट। थैंक यू सर। सर आपका कैमरा ऑफ हो गया है। बाय। आई इज एनी आर्बिट्री पॉइंट पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर wherever it intersects the principal axis, that is point is I। सर वही ना है फोकल पॉइंट। हाँ, तो उसको ही हम फोकस की तरह हम बोलेंगे। जब स्मॉल एंगल्स होगा तो वाला पॉइंट फोकस कहलाएगा। सर फोकस मतलब जहाँ से रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पास होता है ना। हाँ, पूरी जो पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेस वहीं पे आती है। सर उसी को फोकस बुलाना चाहिए ना? करेक्ट, उसी को हम फोकस बोलेंगे। हाँ सर। हाँ सर आपने अभी जो बनाया इंसिडेंट रे ए पे आई फिर आई पे स्ट्राइक करके वापस जा रही है, तो सर आपको कैसे पता कि एसी एक बाइसेक्टर है? तो ये बाइसेक्टर क्यों हुआ? नहीं एक्चुअली ये है। हाँ सॉरी सर, समझ गया, नॉर्मल है ना, वो नॉर्मल है। हाँ सर ये समझ नॉर्मल है। गया। हाँ some student had a doubt guys। हाँ सर मेरा उत्सव। सर क्वेश्चन था फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड so that the girl can see the full image of wall inside the mirror। एक मिनट, कैसा क्या क्वेश्चन क्या है? Find the minimum length of mirror required so that the girl can see full image of wall inside the mirror। Image of wall। ओके और कुछ दिया है? उसका डिस्टेंस कुछ दिया है वॉल का? हाँ सर मैं आपको मेरा कैमरा ऑन करके पेज पूरा डायग्राम दिखा दूं? ओके हाँ, स्क्रीन शेयर करो। एक मिनट, मैं शेयर अलाउ कर दूं। शेयर स्क्रीन। हाँ, शेयर स्क्रीन कर दिया मैंने। एक So just 1 second, I'm scaring। या ठीक है, या फिर you have a next class at what time? उत्सव थोड़ा जूम आउट कर। या फिर एक बार फिर से अभी भेजना, अभी भेजना हो सकता है। काफी सारे मैसेजेस है ना, बहुत सारे ग्रुप्स है, 11 12 दोनों के ग्रुप्स है ना, इसलिए ये हो रहा है। अभी कैन यू सेंड इट अगेन? हाँ सर मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे भेजता हूं। अभी एक बार फिर से उसको भेजना, या जहां पे भेजा है ना उसको जस्ट एक बार टैग कर देना, सो दैट मैसेज कम्स अप, आई कैन रीड इट। हाँ सर अभी भेज देता हूं। अभी कर देना, फिर मैं उसको एक बार देख के कर देता हूँ। सर आप ग्रुप पे हो क्या केवीपी वाले और फिजिक्स बैचेस ग्रुप पे?
हेलो हाँ 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 हाँ। तो सर आप एक बार हाय लिख सकते हैं क्या? मैं आपका नंबर सेव करने का है। ओ मेरा नंबर ये वाला है। अच्छा ओके सर। सर कर दिया आपको सेंड। ओके ठीक है, मैं अभी देख के फिर रिप्लाई सर आपने रब क्यों कर दिया नंबर? आई थॉट यू हैव रिटन। ठीक है ठीक है थैंक यू सर। मुझे और तो भी डाउट्स है, आप जब देखोगे तब आपको पूछ लेता हूँ व्हाट्सएप पे। ओके हाँ थैंक यू सर। ठीक है गाइस, थैंक यू सर। बाय ऑल।